میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے وہ لڑکی چاہیے جس کی تصویر میں نے تمہیں دکھائی تھی. تم یہ کس لڑکی کا رشتہ مانگ کر آ گئی ہو؟ محب مرزا کی آواز میں غصہ اور دہاڑ تھی. نسرین بیگم نے بھی اسے لہجے میں ہی جواب دیا. تمہیں گھر چلانے والی بیوی چاہیے یا کوئی شاپس؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، رشتہ اسی لڑکی کا ہوگا. محب نے شیشے کی میز پر زور سے ہاتھ مارا. میں کسی صورت اس میرب نامی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا. شادی ہوگی تو صرف سیماب سے، ورنہ بھول جاؤ کہ تمہارا کوئی بیٹا بھی ہے. یہ کہانی تب شروع ہوئی جب شبانہ کی زندگی میں کرامت آیا تھا. میرب اس وقت بامشکل 1 سال کی تھی جب اس کے سگے باپ کا انتقال ہو گیا. شبانہ جوان تھی اور اکیلی عورت کے لیے اس معاشرے میں جینا محال تھا. کرامت نے جب شبانہ سے شادی کی تو اس نے میرب کو بھی کھلے دل سے اپنایا. وہ اسے اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتا تھا، لیکن یہ پیار اور شفقت صرف اس وقت تک محدود تھی جب تک کرامت کی اپنی سگی اولاد نہیں ہو گئی تھی. سیماب کی پیدائش نے اس گھر کا پورا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا. سیماب بچپن سے ہی بے حد خوبصورت تھی، دھودیا رنگ اور تیکھے نکش. کرامت کے لیے تو جسے دنیا کی ہر خوشی سیماب کی صورت میں سمٹ آئی تھی، اور یہیں سے میرب کے لیے سوتیلے پن کا آغاز ہوا. بابا، میرے لیے کیا لائے ہیں؟ 6 سالہ میرب نے کرامت کے ہاتھ سے بڑے سے شاپر کو دیکھ کر خوشی سے پوچھا. کرامت نے شوفر فوراً سے پیچھے کر لیا. یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ میری شہزادی سیماب کی گڑیا ہے. تم اپنے لیے کوئی پرانا کھلونا ڈھونڈ لو. شبانہ نے یہ سنا تو کچن سے باہر نکل آئی. کرامت، یہ کیا طریقہ ہے؟ میرب بھی تو آپ کی بیٹی ہے، دونوں کے لیے لے آتے. بچی کا دل کیوں توڑ رہے ہیں؟ کرامت نے ماتھے پر بل ڈالے اور سرد لہجے میں بولا. میرا خون صرف سیماب ہے، اور میں اپنی کمائی صرف اپنی بیٹی پر لگاؤں گا. تم نے پالنا ہے تو خود کما کر لاؤ، ورنہ اسے کہو کہ جو ملتا ہے اس پر شکر کرو. میرب کی چھوٹی سی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے رونا نہیں سیکھا تھا. وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی. وقت گزرتا گیا اور یہ سوتیلا پن میرب کی شخصیت کا حصہ بنتا چلا گیا. میرب کا رنگ تھوڑا سا سانولا تھا، لیکن اس کے اخلاق اور سلیقے کا کوئی ثانی نہیں تھا. پورے گھر کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی. دوسری طرف سیماب کے ناز نخروں نے انتہائی مغرور اور اسے ضدی بنا دیا تھا. اس نے حال ہی میں BA مکمل کیا تھا اور اب گھر میں کچھ نہیں کرتی تھی. سارا دن بند سور کر رہنا اور اپنی خوبصورتی پر غرور کرنا اس کا مشغلہ تھا. آج گھر میں ایک عجیب سی گہما گہمی تھی. کرامت نے پورے گھر کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا. ایک بہت بڑے جاگیردار محب مرزا کے گھر والوں کی طرف سے سیماب کا رشتہ آیا تھا. محب مرزا علاقے کا ایک نامور اور با اثر شخص تھا. اس کی زمینیں اور کاروبار پورے شہر میں پھیلے ہوئے تھے. میرب جلدی کرو، مہمان کسی بھی وقت آنے والے ہوں گے. ڈرائنگ روم صاف ہو گیا ہے. شبانہ نے گھبراہٹ سے پوچھا. جی اماں، سب ہو گیا ہے. میں نے چائے کا سامان بھی نکالا ہے، اسے سموسے فرائی کرنے ہیں. میرب نے پسینہ پوچھتے ہوئے جواب دیا. اور وہ نواب زادی کا ہے؟ شبانہ نے غصے سے پوچھا. وہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی ہے، میں نے ان کے کپڑے استری کر کے رکھ دیے تھے. اسی وقت رامت ڈرائنگ روم میں داخل ہوا. شبانہ، تم ابھی تک کچن میں جاؤ، جا کر دیکھو میری بیٹی تیار ہوئی ہے یا نہیں. آج محب مرزا کی والدہ آ رہی ہیں، مجھے کوئی کمی نہیں چاہیے. میری سیماب اس علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو، اور وہ پہلی نظر میں اسے پسند کر لیں گے. شبانہ خاموشی سے سیماب کے کمرے کی جانب چلے گئی. سیماب آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی. اس نے ہلکی گلابی رنگ کا انتہائی قیمتی جوڑا پہنا ہوا تھا. اس کا سفید رنگ اور تیکھے نقوش مزید ابھر کر سامنے آ رہے تھے. اماں، کیسی لگ رہی ہوں؟ سیماب نے مغرور لہجے میں پوچھا. بیٹا، بہت پیاری لگ رہی ہو، لیکن یاد رکھنا مہمانوں کے سامنے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. نظریں چکا کر رکھنا اور تمیز سے بات کرنا. سیماب نے منہ بنایا. مجھے مت سکھائے اماں، مجھے پتا ہے لوگوں کو کیسے قابو کرنا ہوتا ہے. جاگیرداروں کا گھرانہ ہے، میرے حسن کے آگے ویسے ہی ڈھیر ہو جائیں گے. گاڑی کے ہارن کی آواز نے سب کو چونکنا کر دیا. نسرین بیگم اپنی بہن کے ہمراہ پہنچ چکی تھی. کرامت نے انتہائی خوش آمدانہ انداز میں ان کا استقبال کیا. ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد شبانہ نے میرب کو اشارہ کیا کہ وہ لوازمات لے کر آئے. میرب ایک سادہ سی سوٹ میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی. اس کا سانولا رنگ اور سادگی اس کے چہرے کی متانت کو مزید بڑھا رہی تھی. اس نے انتہائی سلیقے سے سب کے سامنے چائے اور دیگر اشیاء پیش کی. نسرین بیگم کی عقابی نگاہیں میرب کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہی تھی. یہ کون ہے؟ نسرین نے شبانہ سے پوچھا. یہ میری بڑی بیٹی ہے میرب. شبانہ نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا. ماشاءاللہ، بہت سگڑ لگتی ہے. آؤ بیٹی، میرے پاس بیٹھو.
नसरीन बेगम ने मीरब को अपने पास बुलाया। मीरब नजरें झुकाए उनके पास बैठ गई। क्या पढ़ा है तुमने बेटी? जी मैंने एफए किया है। उसके बाद घर के कामों में अम्मा का हाथ बटाने लग गई। मीरब ने धीमी सी आवाज में जवाब दिया, बहुत खूब। आजकल की लड़कियां तो किचन का रास्ता ही भूल गई हैं। नसरीन बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी दौरान सिमाब ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उसकी चाल में गुरूर नुमाया था। उसने आकर मेहमानों को सलाम किया और एक सोफे पर बैठ गई। नसरीन बेगम ने सिमाब को भी सर से पैर तक देखा। खूबसूरती में वाकई उसका कोई सानी नहीं था, लेकिन उसके बैठने के अंदाज और चेहरे की रौनक ने नसरीन बेगम को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। सिमाब बेटी, क्या आपको खाना बनाना आता है? नसरीन बेगम की बहन ने पूछा। सिमाब ने हल्की सी हंसी के साथ नसरीन बेगम की तरफ उनको जवाब दिया, मुझे इन सब कामों का शौक नहीं है। मैं तो अपनी पढ़ाई और अपने शौक पूरे करती हूँ। मोहिब मिर्जा के घर में तो वैसे भी नौकरों की फौज होगी, मुझे काम करने की क्या जरूरत पड़ेगी। ये बात सुनकर करामत का रंग उड़ गया और शबाना ने घबरा कर सिमाब की तरफ देखा। नसरीन बेगम ने गहरी सांस ली और करामत की तरफ मुतवज्जा हुई। करामत साहब, हम यहाँ अपने बेटे मुहिब के लिए रिश्ता मांगने आए हैं। करामत खुशी से फूले नहीं समा रहा था। जी जी बेगम साहिबा, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। मेरी सिबाब से बेहतर लड़की आपको पूरे इलाके में नहीं मिलेगी। नसीम बेगम ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपने घर के लिए कोई शॉप पीस नहीं चाहती, बल्कि एक सुगर और बाइखलाक बहू चाहती हूँ। मैं आपकी बड़ी बेटी मीरब का रिश्ता अपने बेटे मुहिब के लिए मांगती हूँ। ड्राइंग रूम में मौत जैसी खामोशी छा गई। करामत के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। सिमाब का मुंह खुले का खुला रह गया और मीरब ने हैरत से सर उठाकर नसरीन बेगम को देखा। लेकिन बेगम साहिबा, रिश्ता तो सिमाब का था ना? करामत ने हकलाते हुए कहा। मैंने सिर्फ रिश्ता भेजने की बात की थी, लड़की का इंतखाब मैंने खुद करना था। और मेरी नजर में मीरब मेरे बेटे और मेरे घर के लिए बिल्कुल मुनासिब है। क्या आपको इस रिश्ते से कोई एतराज है? नसीम बेगम ने दो टूक अल्फाज में पूछा। करामत बिल्कुल बेबस हो चुका था। वो इतनी बड़े जागीरदार को इनकार करने की हिम्मत नहीं रखता था, लेकिन अपनी सगी बेटी की जगह सौतेली बेटी का रिश्ता उसे किसी सूरत कबूल नहीं था। बेगम साहिबा, हमें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ये बहुत बड़ा फैसला है। करामत ने नजरें चुराते हुए कहा। ठीक है, आप कल तक सोच लें। कल दोबारा आएंगे आपका आत्माई जवाब सुनने के लिए। नसरीन बेगम खड़ी हुई और अपनी बहन के हमरा बाहर चली गई। मेहमानों के घर के जाने के बाद एक तूफान बर्पा हो गया। ये सब क्या था बाबा? वो बुड्ढी मेरा रिश्ता छोड़कर इस काली कलोटी का रिश्ता कैसे मांग सकती है? सिमाब ने चीखते हुए कहा। बकवास बंद करो सिमाब, मैं खुद हैरान हूं कि ये क्या माजरा है। करामत ने गुस्से से कहा। उसे शबाना की तरफ देखा। ये सब तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है। मैंने कहा था कि इसे मेहमानों के सामने मत लाना। अब देखो इसने कैसा जादू किया इन पर। मैं किसी कीमत मीरब की शादी इतने बड़े घर में नहीं होने दूंगा। मेरे बेटी की हक तलफी होगी। मीरब किचन के दरवाजे में खड़ी सब सुन रही थी। उसके दिल पर जैसे खंजर चढ़ रहे थे। क्या उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो सलीकामंद थी? हमेशा घर में उसके साथ नाइंसाफी होती आई थी और आज भी उसके साथ सौतेला सलूक हो रहा था। उसने अपने आंसू साफ किए और खामोशी से अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ नसरीन बेगम जब अपने घर पहुंची तो वहीं मिर्जा ड्राइंग रूम में उनका इंतजार कर रहा था। माँ, क्या बना? बात पक्की करें या ना? मोहिब ने बेसब्री से पूछा। नसरीन बेगम सोफे पर बैठ गई। हाँ, मैंने बात पक्की कर ली है। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई है। इंतहाई सलीकामंद और तमीजदार है। मोहिब के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने आपसे कहा था ना माँ कि सेमाब जैसी लड़की पूरे शहर में नहीं है। मैंने उसे एक शादी में देखा था और वही फैसला कर लिया था। शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से। नसरीन बेगम ने चौंक कर मोहिब की जानिब देखा। सेमाब? मैं सेमाब का रिश्ता नहीं मांग कर आई, मैंने उसकी बड़ी बहन मीरब का रिश्ता मांगा है। मोहिब के कदम वहीं रुक गए। उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई और उसकी ये जगह शदीद गुस्से ने ले ली। आप क्या कह रही हैं अम्मा? मीरब कौन है? मैंने आपको सेमाब की तस्वीर दिखाई थी ना, और साफ अल्फाज में कहा था कि मुझे वही लड़की चाहिए। मैंने तुमसे कहा मुझे वो लड़की चाहिए जिसकी तस्वीर मैंने तुम्हें दिखाई थी। तुम ये किसका रिश्ता मांग कर आई हो? मोहिब मिर्जा की आवाज में गुस्सा और दहाड़ थी। नसरीन बेगम ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। तुम्हें घर चलाने वाली बीवी चाहिए या कोई शोपीस? मैंने फैसला कर लिया है, रिश्ता उसी लड़की से होगा।
सिम्हा इंतहाई मगरूर और बदतमीज लड़की है। उसे सिर्फ अपने हुस्न पर नाज है। वो हमारे घर को जोड़ कर नहीं रख सकती, जबकि मेरा पूरे घर को संभाले हुए है। वो मेरे लिए और इस घर के लिए बेहतरीन है। मोहिब ने शीशे की मेज पर जोर से हाथ मारा। मैं किसी सूरत उस मीरब नामी लड़की से शादी नहीं करूंगा। शादी होगी तो सिर्फ सिमाप से, वरना भूल जाओ कि तुम्हारा कोई बेटा भी है। मुहिब, तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो। तुमने उस लड़की को देखा तक नहीं और तुम इनकार कर रहे हो। मैंने नहीं देखना उसे, मुझे सिमाप चाहिए और बस। अगर आप कल वहां जाकर रिश्ता नहीं बदलेंगी तो मैं खुद जाकर करामत साहिब से बात करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि मेरी माँ ने अपनी मर्जी से फैसला किया है, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। मुहिब ने हतमाई लहजे में कहा और ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। नसरीन बेगम सर पकड़ के बैठ गई। उन्हें मुहिब की जिद का अच्छे से अंदाजा था। वो जानते थे कि मुहिब किसी सूरत नहीं मानेगा, और अगर उसने खुद जाकर कोई तमाशा खड़ा कर दिया तो उनकी और उनके खानदान की बहुत बेइज्जती होगी। अगली सुबह नसरीन बेगम भारी कदमों के साथ दोबारा करामत के घर पहुंची। करामत और शबाना उनका इंतजार कर रहे थे। आइए बेगम साहिबा, करामत ने इंतहाई बुझे हुए दिल के साथ कहा। नसरीन बेगम ने सोफे पर बैठते बराह रास्त बात शुरू की। करामत साहिब, मैं आपसे माजरत करने आई हूँ। करामत का दिल जोर से धड़का। क्या वो ये रिश्ता वापस देने आई है? कल जो मैंने आपकी बड़ी बेटी का रिश्ता मांगा, मैं वो फैसला वापस देती हूँ। दरअसल मुहिब ने सेमाब को किसी फंक्शन में देखा था और उसने खास तौर पर सेमाब के लिए मुझे भेजा है। मैंने अपनी मर्जी मुसल्लित करने की कोशिश की, लेकिन मेरा बेटा सेमाब के अलावा किसी और से शादी करने पर राजी नहीं, इसलिए मैं बाकायदा तौर पर सेमाब का रिश्ता मांग रही हूँ। ये अल्फाज सुनते ही करामत की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसके चेहरे पर रौनक लौट आई। ये तो बहुत ही खुशी की बात है बेगम साहिबा। हम भला आपको कैसे इनकार कर सकते हैं? हमें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। करामत ने फौरन हामी भरी। तो ठीक है, हम अगले हफ्ते शादी की तारीख रख देते हैं। मुहिब को जल्दी है और हम भी मजीद इंतजार नहीं करना चाहते। नसरीन बेगम ने कहा, जी बिल्कुल, जैसे आपकी मर्जी। हम आज ही तैयारियां शुरू कर रहे हैं। ये सारी गुफ्तगू मीरब पर्दे के पीछे खड़ी सुन रही थी। कल जब उसका रिश्ता मांगा गया तो उसके बाप ने सोचने का वक्त मांगकर उसे जलील किया था, और आज सेमाब का रिश्ता मांगा गया तो एक लम्हे की ताखीर किए बगैर हामी भर ली गई। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके साथ जिंदगी भर नाइंसाफी हुई थी, लेकिन आज उसकी जात को जिस तरह रौंदा गया था, उसकी कोई मिसाल ही नहीं थी। रिश्ता उसके लिए आते आते उसकी छोटी बहन की तरफ मोड़ गए थे। उसका गुनाह सिर्फ उसका सांवला रंग था। उसने अपनी आंखों से गिरते हुए गर्म आंसू को सख्ती से साफ किया और अपने जज्बात को एक बार फिर अपने अंदर दफन कर लिया। उसे तो बचपन से कुर्बानी देने की आदत थी। घर में शादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। करामत ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी सेमाब की शादी पर लगा दी। सेमाब की खुशी दीदनी थी, वो हवाओं में उड़ रही थी, पर हर रोज नए कपड़े, जूते और जेवरात की फरमाइशें हो रही थी, और करामत बगैर किसी हिचकिचाहट के उसकी हर मांग पूरी कर रहा था। दूसरी तरफ मीरब दिन रात मशीनों की तरह काम कर रही थी। घर की सफाई से लेकर मेहमानों की तवाज़ा और सेमाब के कपड़ों की सलाई तक हर काम उसके जिम्मे था। लेकिन किसी के मुंह से उसके लिए तारीफी या शुक्रिया का एक लफ्ज भी नहीं था। लेकिन एक दिन मीरब सेमाब के कपड़े इस्त्री करके उसके कमरे में लाई। सेमाब अपने जहेज के जेवरात देख रही थी। ये कपड़े रख दो और जरा एहतियात से रखना, खराब ना हो जाए। सेमाब ने मीरब को हकारत से देखते हुए कहा, मैंने एहतियात से ही रखे हैं। मीरब ने धीमी आवाज में कहा, और सुनो, मेरे अरूसी जोड़े पर जो काम बाकी है ना, वो तुम रात तक मुकम्मल कर देना। मुझे कल सुबह तक हर हाल में तैयार चाहिए। सेमाब, मुझे रात को और भी बहुत काम करने हैं। मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए खाना बनाना होता है। मीरब ने वजाहत देने की कोशिश की, मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने। तुम बस मेरा काम मुकम्मल करो। तुम वैसे वैसे भी और काम कर सकती हो ना। यहाँ तुम्हारी औकात ही क्या है? सेमब ने इंतहाई धीम जहरीले लहजे में कहा। शबाना दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी। वो अंदर आई और सेमाब को घूर कर बोली, ये किस तरह बात कर रही हो तुम अपनी बड़ी बहन से? मीरब दिन रात तुम्हारी शादी के कामों में लगी हुई है और तुम उसे जलील कर रही हो। अम्मा, आप इसे मेरी नजरों से ना दूर ले जाए। मेरी शादी मुहिब मिर्जा से हो रही है। मैं उस घर की मलका बनने जा रही हूँ, और ये कल भी नौकरानी थी और आगे भी नौकरानी ही रहेगी। शबाना ने आगे बढ़कर सेमाब को थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन मीरब ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़िए अम्मा, ऐसे कुछ मत कहे। इसकी शादी है ना, मैं कर दूंगी इसका काम। मीरब ने शबाना को खींचकर कमरे से बाहर निकाल दिया। कमरे में आकर शबाना रोने लगी। मुझे माफ कर दे मीरब, मैं तेरी मुजरिम हूँ।
मैं जानती हूँ तेरे साथ इस घर में क्या सलूक होता है, लेकिन मैं करामत के आगे मजबूर हूँ। वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। तो इससे बेहतर रिश्ता डिजर्व करती थी, लेकिन तेरे नसीब में हमेशा ठोकरें ही लिखी हैं। मीरब ने अपनी माँ के आंसू साफ किए। माँ, देखे आप रोए मत। मेरे नसीब में जो लिखा है ना, वो मुझे मिलकर रहेगा। आप मुझे बस ये सिखाएं कि सब्र कैसे करना है। मैं इस घर में भी चुपचाप रही हूँ और आगे भी रहूंगी। मुझे सिमाप से कोई हसद नहीं है। वो मेरी बहन है और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अंदर से वो बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन अपनी माँ को मजीद तकलीफ नहीं देना चाहती थी। उसने अपने दर्द को मुस्कुराहट के पीछे छुपा लिया था, और अब ये मुस्कुराहट उसका वाहिद हथियार थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो शादी के दिन तक किसी को भी अपने चेहरे की उदासी पड़ने नहीं देगी और हर काम हंस खेल कर करेगी। शादी वाले घर हर तरफ गहमा गहमी और शोरगुल अरूज पर था। मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था और हर कोई कामों में उलझा हुआ था। ये फूलों की लड़ी यहाँ नहीं वहां लगा और जल्दी से हाथ चलाओ। सिमाब ने लाउंज में खड़े होकर डेकोरेशन वाले लड़के को डांटते हुए हुक्म दिया। उसके लहजे में तकब्बुर और फिरौनियत साफ झलक रही थी। वो आज घर की मलका बनी हुई थी और हर किसी पर रूप झाड़ रही थी। सिमाब, तुम जाकर आराम कर लो, ये काम मैं देख लेती हूँ। मीरब ने किचन से निकलते आजसी से कहा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और वो सुबह से एक मिनट के लिए भी नहीं बैठी थी। तुम अपना काम करो और मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। वैसे भी तुम्हारी पसंद नहायत थर्ड क्लास है। मेरी जागीरदाना शौहर के घर वालों ने आना है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। सिमाब ने हकारत अमीज नजरों से मीरब को देखा। मीरब ने एक गहरी सांस ली और अपने दुख को अंदर ही अंदर दबा दिया। उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट उभरी। जैसे तुम्हारी मर्जी मेरी बहन, मैं तो बस तुम्हारी थकावट का सोच रही थी। तुम दुल्हन हो, आराम करोगी तो तुम्हारे चेहरे पर रौनक आएगी। मीरब ने नरमी से जवाब दिया और वापस किचन की जानी मुड़ गई। किचन में शुबाना खड़ी सारा तमाशा देख रही थी। उसकी आंखों में अपनी बड़ी बेटी के लिए बेपनाह दर्द था। वो क्यों उसके मुंह लगती है मीरब? तुझे पता तो है वो आजकल आसमान पर उड़ रही है। शबाना ने मीरब का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाते हुए कहा, अम्मा, वो मेरी छोटी बहन है, उसकी खुशी का दिन है, मैं उससे क्यों नाराज होंगी? कल वो चली जाएगी तो हम उसे याद ही करेंगे ना। मीरब ने हंसते हुए बात को टालने की कोशिश की। तेरे अंदर का दुख मैं जानती हूँ मेरी बच्ची। तेरे बाप ने तेरे साथ बहुत ज्यादती की। सारा जेवर, सारे अच्छे कपड़े सिमाप को दे रहा है और तुझे पुराने कपड़ों में घुमा रहा है। शुबाना की आंखों में आंसू झलक पड़े। अम्मा, आप बेशुर हो गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। देखें, मैंने अपने लिए कितना प्यारा सूट इस्त्री करके रखा है। मीरब ने जानबूझकर शरारती अंदाज अपनाया ताकि माँ का ध्यान बटा सके। बारात का दिन आ गया। पूरे घर में मेहमानों का रश था और कवाली की आवाजें गूंज रही थी। सिमाप दुल्हन बनकर अपने कमरे में बेड पर बैठी थी और सुर्ख जोड़े और भारी जेवरात में दुल्हा की खूबसूरत लग रही थी। उसे अपने हुस्न पर बेपनाह गरूर था। मीरब मेहमानों को चाय देकर जरा देर के लिए सिमाप के कमरे में आई ताकि उसका जायजा ले सके। वाह सिमाप, आज तो तुम वाकई किसी बड़े नवाब की बेगम ही लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। मीरब ने सच्चे दिल से मुस्कुराते हुए सिमाप की तारीफ की। मैं तो हूं ही खूबसूरत। मोहिब मिर्जा तो मेरी एक झलक देखकर ही पागल हो जाएगा। उसे पूरे इलाके में मेरी जैसी लड़की मिल ही नहीं सकती। सिमाप ने आईने में अपना जायजा लेते हुए इंतहाई गुरूर से कहा। उसका ये गुरूर और तकब्बुर मीरब को एकदम खटक गया। उसने सोचा कि क्यों ना उसके इस गुरूर को जरा सी ठेस पहुंचाई जाए। उसके दिल में एक शरारत ने जन्म लिया ताकि वो बहन के साथ थोड़ा हंसी मजाक कर सके। हाँ, खूबसूरत तो तुम हो, लेकिन बेचारा तुम्हारा दुल्हा। मीरब ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी और चेहरे पर शदीद अफसोस का तासुर ले आई। क्या मतलब? क्या हुआ मेरे दूल्हे को? और तुम ये बेचारा क्यों कह रही हो? सिमाप ने मुड़कर तेज निगाहों से मीरब को घूरा। मुझे तो तरस आ रहा है तुम पर। तुम इतनी प्यारी लड़की और दुल्हा बिल्कुल टकला निकला। मीरब ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी दबाते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? मेरा दुल्हा और टकला? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? सिमाप गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हो गई, पर उसका बाहरी जोड़ा जमीन पर लहराया। हाँ बहन, मैंने खुद देखा। आज सुबह लड़के वालों की तरफ से एक तस्वीर आई थी। जागीरदार तो है वो, बहुत बड़ा, लेकिन उसके सर पर एक भी बाल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल किसी चुटील मैदान जैसा चमकता हुआ सर है। मीरब ने नहायत
संजीदगी से आंखों में छोटी झूठी सच्चाई भरकर झूठ बोला। उसे लगा कि सिमाब इस बात को मजाक समझेगी और थोड़ी देर बाद उसे सच बता देगी कि मोहिब मिर्जा दरअसल एक खूबरू और पुरकशिश नौजवान है। लेकिन सिमाब का रद्दमल उसकी तौक़ा से बिल्कुल मुख्तलिफ और भयानक था। सिमाब का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया, उसकी आंखों में वहशत उतर आई और उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बेच दी। निकल जाओ मेरे कमरे से मीरा, और जाके अपने बाबा को बेचो मेरे पास, अभी के अभी। सिमाब ने पूरी ताकत से चीखते हुए कहा, अरे सिमाब, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस। मीरा अपने बात को संभालने की कोशिश की, लेकिन सिमाब ने उसे बोलने का मौका ही न दिया। मैंने कहा ना, निकल जाओ तुम यहाँ से। तुम सब ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद करने का मंसूबा बनाया है। सिमाब ने पास पड़ा शीशे का गुलदान उठाकर जोर से दरवाजे पर दे मारा। गुलदान के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। मीरा घबरा कर कमरे से बाहर निकल गई। उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसका एक छोटा सा मजाक इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देगा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि सिमाब इतनी बेवकूफ हो सकती है कि बिना तहकीक के बात को पतंगड़ बना दे। गुलदान टूटने की आवाज सुनकर थोड़ी ही देर में करामत और शबाना दौड़ते हुए सिमाब के कमरे में दाखिल हुए। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम इस तरह चीख क्यों रही हो? बारात दरवाजे पर पहुंचने वाली है, तुमने गुलदान क्यों तोड़ दिया? रहमत ने शदीद परेशानी और घबराहट में पूछा। मैं ये शादी नहीं करूंगी। आप लोगों ने मुझसे इतना बड़ा धोखा किया है। आप मेरे सगे माँ बाप नहीं हो सकते। सिमाब ने रोते हुए जमीन पर बैठकर कहा, धोखा? कैसा धोखा? हमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं होगी? एन शादी के वक्त? शबाना ने आगे बढ़कर उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने माँ को सख्ती से पीछे धकेल दिया। मुझे हाथ मत लगाए आप। दोनों ने मुझे उस लड़की की तस्वीर तक नहीं दिखाई और मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मैं किसी टकले और गंजे इंसान से शादी नहीं करूंगी। मैं इतनी खूबसूरत हूँ और मेरा शौहर गंजा होगा? कभी नहीं। सिमाब ने हठधर्मी से तकब्बुर से भरी आवाज में कहा, टकला? कौन टकला? मोहिब मिर्जा तो घने बालों में है। तुझे किसने कह दिया ये सब? तुझे किसने बहकाया है? करामत ने हैरत और गुस्से से पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अफवाह कहाँ से उड़ी है, लेकिन सिमाब ने किसी की एक न सुनी। उसका गुरूर और उसकी बेवकूफी उसकी अकल पर पर्दा डाल चुके थे। मैंने कह दिया ना कि मैं शादी नहीं करूंगी, तो मतलब नहीं करूंगी। आप लोगों को मुझसे झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था और तस्वीर भी छुपाई मुझसे। अब बे अब मैं भी आपको कुछ नहीं बताऊंगी कि मैंने किससे क्या सुना है, और मुझे इनकार की मजीद कोई वजह नहीं देनी। बस आप बारात वापस भेज दे। सिमाब ने जिद्दी बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। करामत ने उसके आगे हाथ जोड़े, उसके कदमों में बैठ गया, लेकिन वो टस से मस ना हुई। खुदा के लिए मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाओ सिमाब। बारात आ चुकी है, बाहर नसरीन बेगम बैठी है। मैं इतने बड़े जागीरदारों को क्या जवाब दूंगा? वो हमें जिंदा गाड़ देंगे। करामत फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे आपकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं किसी सूरत उस मनहूस शक्ल वाले से शादी नहीं करना चाहती। ये तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। वो निकाहनामे पर दस्तखत नहीं करूंगी। सिमाब ने फैसलाकुन अंदाज में कहा और बेड पर गिरकर तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। महफिल में खुसर पुसर शुरू हो चुकी थी। नसरीन बेगम और मुहिब मिर्जा स्टेज पर बैठे दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। मुहिब ने काले रंग का इंतहाई कीमती सूट पहना हुआ था और वो किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। काफी देर गुजरने के बाद जब दुल्हन नहीं आई, तो नसरीन बेगम खुद उठकर अंदर वाले हिस्से में गई। वहां का मंजर देखकर उनके कदम रुक गए। करामत सर पकड़े जमीन पर बैठा था। शबाना रो रही थी और मीरब खौफजदा सी एक कोने में खड़ी थी। ये क्या तमाशा है करामत साहब? मेरी बारात बाहर जलील हो रही है, लोग बातें बना रहे हैं और दुल्हन अभी तक तैयार नहीं। नसरीन बेगम ने सख्त लहजे में गुस्से से पूछा। उनकी आंखों से शोले निकल रहे थे। करामत ने कांपते हुए हाथों के साथ नसरीन बेगम को देखा। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। बेगम साहिबा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी बेटी ने ऐन वक्त पर शादी से इनकार कर दिया है। वो पागल हो गई है। करामत की आवाज में शदीद बेबसी थी। क्या बकवास कर रहे हो ये? किस बात का इनकार? तुम लोग हमारे साथ खेल खेल रहे हो? नसरीन बेगम का पारा एकदम से हाई हो गया। वो कह रही है कि हमने उसे झूठ बोला है और वो मोहिब से शादी नहीं करना चाहती। हमने उसे बहुत समझाया, उसके पाँव पकड़े, लेकिन वो जिद्दी लड़की किसी की नहीं सुन रही। वो कह रही है कि उसे मोहिब पसंद नहीं है। करामत ने रोते हुए सारा मुद्दा बयान किया। नसरीन बेगम गुस्से से कांपने लगी। उनके खानदान की इतनी बड़ी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की थी। एक मामूली सी लड़की उनके जागीरदार बेटे को ठुकरा रही थी। उन्होंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर करामत की तरफ देखकर हतमई और गर्जदार आवाज में बोली, मैं आज
اپنے بیٹے کو بغیر دلہن کے یہاں سے نہیں لے کر جاؤں گی. تم نے میرے خاندان کی ناک کٹوائی ہے اور اب اس کا ازالہ تم ہی کرو گے. میں خالی ہاتھ واپس جا کر برادری میں تماشا نہیں بنوں گی. میں کیا کر سکتا ہوں بیگم صاحبہ؟ آپ جو سزا دیں گی مجھے منظور ہے. میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے. کرامت نے ہاتھ جوڑ دیے. اپنی بڑی بیٹی میرب کو دلہن کے کپڑے پہنا. میرب کا نکاح اسی سے ہوگا. ویسے بھی میری میرب پسند ہے. اسے 15 منٹ سٹیج پر لے کر آ، ورنہ میں تم سب کو جیل بھجوا دوں گی. نسرین بیگم نے فیصلہ سنا دیا. کرامت پر جیسے بجلی گر پڑی. جس ستیلی بیٹی کو وہ ہمیشہ حقیر سمجھتا آیا تھا، آج وہی اس کی عزت بچانے کا واحد سہارا بن گئی تھی. میرب نے حیرت اور صدمے سے نسرین بیگم کو دیکھا. اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی. محب مرزا کو جب اس کے فیصلے کا علم ہوا تو اس نے سٹیج کے پیچھے جا کر ہنگامہ کھڑا کر دیا. ماں، آپ کا دماغ خراب ہو گیا؟ میں نے اس لڑکی کو دیکھا تک نہیں اور آپ اس سے میرا نکاح کروانا چاہتی ہیں؟ میں سماپ سے شادی کرنے آیا تھا، اس کی بہن سے نہیں. محب کی آواز میں غصہ اور دہاڑ تھی. آواز نیچی رکھو محب. تم دیکھ نہیں رہے کہ اس لڑکی نے ہمارا کتنا بڑا تماشا بنایا؟ اگر ہم آج بغیر دلہن کے واپس گئے تو پورے شہر میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. نسرین بیگم اس کے قریب جا کر دبی ہوئی آواز میں اسے ڈانٹنے لگی. تو میں کیا کروں؟ میں ذلت کا بدلہ اپنی پوری زندگی برباد کر کے کیوں دوں؟ میں نے سماپ کو پسند کیا تھا، میں کسی اور لڑکی کو قبول نہیں کروں گا. آپ ابھی انہیں انکار کریں. محب نے ضد کی. یہ میری عزت کا سوال ہے محب. اگر تم نے آج یہ نکاح نہ کیا تو میں ساری زندگی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی. حالات کی نزاکت کو سمجھو. ہم جاگیردار ہیں، ہماری عزت ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہے. نسرین بیگم نے اپنا آخری ہتھیار استعمال کیا اور اسے اپنی ممتا کا واسطہ دیا. محب نے غصے سے اپنے ہاتھ آپس میں رگڑے. وہ اندر سے کھول رہا تھا، لیکن ماں کی قسم اور حالات کے دباؤ نے اسے بے بس کر دیا تھا. اس نے مجبوری میں سر ہلا دیا. ٹھیک ہے ماں، میں صرف آپ کی عزت کے لیے نکاح کر رہا ہوں، لیکن میں اس لڑکی کو کبھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کروں گا. وہ ساری زندگی اس گھر میں ایک قیدی بن کر رہے گی. دوسری طرف کمرے میں میرب کو زبردستی دلہن کا جوڑا پہنایا گیا. وہ بالکل خاموش تھی. اس کی آنکھوں میں شدید خوف اور پچھتاوا تھا. اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا ایک مذاق کتنی بڑی تباہی لا چکا ہے. وہ ڈر کے مارے کسی کو بتا بھی نہیں پا رہی تھی کہ اسے ماں نے انکار کس وجہ سے کیا ہے. اس کا دل تھوڑی سی تیزی سے دھڑک رہا تھا. اس نے تو صرف ایک چھوٹی سی شرارت کی تھی، لیکن تقدیر نے اسے کسی اندھے کنویں سے دھکیل دیا تھا. مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا. میرب نے روتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں قبول ہے کہا. اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری کھائی میں گر رہی ہے اور اسے بچانے والا کوئی نہیں. محب نے بھی انتہائی غصے اور زہر بھرے لہجے میں قبول ہے کہہ کر دستخط کر دیے. رخصتی کا منظر انتہائی عجیب اور اداس تھا. نہ کوئی ڈھول تھا، نہ خوشی کے گیت اور نہ ہی مبارکباد دینے والے لوگ. کرامت نظریں جھکائے کھڑا تھا اور شبانہ پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی. وہ اپنی بیٹی کو اس طرح اچانک رخصت ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی. سماب اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کتنا قیمتی ہیرا کھو چکی ہے. میرب گاڑی میں محب کے ساتھ بیٹھی تھی. گاڑی میں موت جیسی تاریک خاموشی تھی. محب مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات انتہائی سخت اور پتھریلے تھے. میرب کے ہاتھ ڈر کے مارے ٹھنڈے ہو رہے تھے. وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ کسی طرح یہ وقت گزر جائے اور اس کے جھوٹ کا پردہ فاش نہ ہو. محب کے گھر پہنچ کر ملازمین نے اس کا استقبال کیا، لیکن اس استقبال میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو ایک جاگیردار کی شادی میں ہونی چاہیے تھی. گھر کا ماحول انتہائی تناؤ کا شکار تھا. نسرین بیگم نے میرب کو ایک بڑے ہی سجے کمرے میں بٹھا دیا. خود رشتہ دار کو سنبھالنے میں مصروف ہو گئی. میرب بیڈ کے کنارے پر بیٹھی گھبراہٹ میں اپنے ہاتھ مسل رہی تھی. اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ اگر محب کو یہ بات پتہ چل گئی کہ سماپ نے انکار دراصل اس کی ایک چھوٹی سی شرارت کی وجہ سے کیا ہے، وہ اس کا کیا اثر کرے گا. کافی دیر گزرنے کے بعد کمرے کا بھاری دروازہ زور سے کھلا. محب مرزا غصے سے پھنکارتا ہوا اندر داخل ہوا. اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی. اس کے ماتھے کی رگیں ابڑی ہوئی تھی. اس نے آ کر زور سے دروازہ بند کیا اور میرب کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. میرب ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی اور بیڈ کی پشت سے لگ گئی. اس کا سانس رکنے لگا تھا. تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم یہ گھٹیا اور ذلیل کھیلو کھیلو گی؟
اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ محب کی آواز گرجدار اور کمرے میں گونجی۔ میرب نے حیرت اور شدید خوف سے محب کی طرف دیکھا۔ اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ کون سا کھیل؟ میں نے کیا کیا؟ مجھ سے مزید جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرو میرب۔ میری چھوٹی بہن نے ابھی مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ سیماب نے اسے فون کر کے سارا سچ اگل دیا ہے کہ تم نے اس کے ذہن میں کیا زہر بھرا تھا اور میرے بارے میں کیا بکواس کی تھی۔ تم نے اسے کہا تھا کہ میں گنجا ہوں۔ محب نے اس کے قریب آ کر انتہائی سرد اور کاٹدار لہجے میں کہا۔ میرب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے گرد موجود ہوا ختم ہو گئی ہے اور دم گھٹ کر وہ مر جائے گی۔ سیماب نے غصے میں آ کر محب کی بہن کو فون پر وہ ساری بکواس سنا دی تھی جو میرب نے اسے کہی تھی۔ وہ میں نے بس ایک مذاق کیا تھا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ سیماب اتنی بڑی بات بنا دے گی اور سچ مان لے گی۔ میرب نے روتے اپنے ہاتھ جوڑ کر سچائی بیان کرنے کی کوشش کی۔ مذاق؟ تم نے میری زندگی برباد کر کے میری محبت کو مجھ سے چھین کر اسے مذاق کا نام دے دیا؟ تم اتنی نیچ اور گھٹیا لڑکی ہو، مجھے آج پتا چلا۔ تم نے میری شکل کو مذاق بنایا۔ محب نے نفرت امیز نظروں سے میرب کو دیکھا جیسے وہ کوئی کیڑا ہو۔ خدا کی قسم، میرا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا۔ میں تو صرف سیماب کا غرور توڑنے کے لیے اسے چھیڑ رہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری بات کو سچ مان لے گی اور شادی سے انکار کر دے گی۔ میں تو خود اس سے شادی پر مجبور ہوئی تھی۔ میرب کے گرم آنسو اس کے گالوں پر مسلسل بہ رہے تھے۔ بکواس بند کرو، تم ایک چلاک اور مکار عورت ہو۔ تم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر منصوبہ بندی کے تحت کیا تھا تاکہ تم اس گھر کی بہو بن سکو۔ تم نے میری دولت، میری جاگیر کے لیے اپنی بہن کے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے۔ تم چاہتی تھی کہ وہ انکار کرے اور تم میری بیوی بن جاؤ۔ محب کے ہر لفظ میں زہر بڑا ہوا تھا۔ میرب نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی برداشت جواب دے رہی تھی۔ میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں کبھی ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتی۔ تم نے جو کیا ہے اس کی سزا میں تمہیں دوں گا۔ تم میری دلہن بن کر اس گھر میں آ تو گئی ہو، لیکن اب تمہیں کبھی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ تمہاری جگہ اس گھر کے میں نوکروں سے بھی بدتر ہوگی۔ تم اس گھر میں گٹ گٹ کر مرو گی اور کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ محب نے انگلی اٹھا کر اسے آخری دھمکی دی۔ اس کے لہجے کی سختی اور نفرت نے میرب کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ وقت کے ساتھ شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے گھٹن اور اذیت ناک سفر تو اب شروع ہوا ہے۔ محب نے اسے ایک آخری نفرت بری نگاہ سے دیکھا اور مڑ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی زوردار آواز نے میرب کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی نے اس کی پوری زندگی برباد کر دی تھی۔ اس کا مستقبل اب ایک خوفناک اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ کمرے میں صبح کی پہلی کرن داخل ہوئی، لیکن اس روشنی نے کمرے میں موجود حبس اور تناؤ کو کم نہیں کیا تھا۔ میرب اسی طرح اور اسی جوڑے میں ملبوس زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوچ چکی تھی اور چہرے پر شدید تھکاوٹ تھی۔ وہ پوری رات جاگتا رہا تھا اور اسے کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہاری اس معصوم شکل کے پیچھے نا ایک مکار عورت چھپی ہے، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ محب نے مڑ کر خونخوار نظروں سے میرب کو دیکھا اور اس کا جبڑا سختی سے بھینچا۔ میرا یقین کرے، میرا مقصد آپ کو دھوکہ دینا ہرگز نہیں تھا۔ میرب نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑے۔ اس کی آواز شدت غم سے کانپ رہی تھی۔ اپنی یہ جھوٹی کہانیاں کسی اور کو سنانا، تم نے میری دلہن کی جگہ لے لی ہے، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں کبھی اپنی بیوی نہیں مانوں گا۔ محب نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کا سایہ میرب کے لرزتے ہوئے وجود پر پڑا۔ میں تو خود اس شادی کے حق میں نہیں تھی، یہ تو حالات مجھے مجبور کر گئے۔ میرب خوف سے دیوار کے ساتھ مزید چپک گئی اور خوف سے اور سکڑنے لگی۔ حالات نہیں، تمہاری اس گھٹیا شرارت نے۔ تم نے میری شکل کا مذاق اڑایا۔ محب نے آگے بڑھ کر سختی سے میرب کا بازو پکڑا اور اسے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ صرف ایک مذاق تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ سیماب اتنی بڑی بات بنا دے گی اور سچ مان لے گی۔ میرب کی کلائی میں شدید درد ہوا اور اس نے براہ راست میرب کے محب کے غصے سے بڑی آنکھوں میں دیکھا۔ مذاق؟ تمہاری زندگی کا فیصلہ اور تمہارا مذاق؟ چلو باہر سب کو بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے۔ محب نے اس کی کلائی پر گرفت سخت کی اور دروازے کی طرف کھینچنا شروع کیا۔ مجھے مت لے کر جائے باہر، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میرب نے اپنا بازو چھڑانے کی پوری کوشش کی۔ اس کے لہجے میں وحشت نمایاں تھی۔
तुम्हारी इज्जत का ख्याल मैं क्यों करूं जब तुमने मेरी मोहब्बत और इज्जत दोनों को मिट्टी में मिला दिया। मुहिब ने जोर से कमरे का बाहरी दरवाजा खोला और मीरब को खींचता हुआ राहदारी में ले आया। बाहर लाउंज में नसरीन बेगम सुबह की चाय पी रही थी। उनके चेहरे पर इत्मीनान था, लेकिन जैसे उन्होंने मुहिब को मीरब के साथ इस हाल में देखा तो उनके हाथ से चाय का कप छलक गया। ये क्या बदतमीजी है मुहिब, उसका हाथ छोड़ो। नसरीन बेगम फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई और उनकी आवाज शदीद हैरत और गुस्से में थी। माँ, आज इस लड़की का राज खोलने लगा हुआ है। आप जानती हैं कल से माँ अपनी शादी से इनकार क्यों किया था? मुहिब ने मीरब को धक्का देकर आगे की और उसकी तरफ उंगली उठाकर इशारा किया। जो भी वजह थी, बात खत्म हो चुकी है। अब ये इस घर की बहू है। नसरीन बेगम आगे बढ़ी। उन्होंने मीरब को अपने पीछे छुपाकर तहफ्फुज फराहम किया। बात खत्म नहीं हुई है माँ। इस लड़की ने सिमाप से कहा था कि मैं एक गंजा हूँ और बदशक्ल इंसान हूँ और ये मेरी बीवी बन गई। इसने ये खेल खेला और सिमाप ने इनकार कर दिया। मुहिब की गर्जदार आवाज पूरे लाउंज में गूंजी और घर के मुलाजमिन भी सहम कर पीछे हट गए। क्या ये सच है मीरब? नसरीन ने मुड़कर मीरब की तरफ देखा। उनकी आंखों में सच्चाई जानने की तरफ थी। जी सच है, लेकिन मैं सिर्फ मजाक किया था, मेरा कोई और इरादा नहीं था। मीरब ने अपनी नजरें झुका ली और शर्मिंदगी के बोझ तले उसका सर मजीद झुक गया। देखा इसने माँ, ये खुद इकरार कर रही है मैं ऐसे धोखेबाज औरत के साथ एक पल नहीं रह सकता। मैं अपने गुस्से से अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और उसका फैसला पत्थर पर लकीर लग रहा था। तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह ठीक है मोहिब, लेकिन शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है जिसे तुम एक पल में खत्म कर दो। नसरीन बेगम का लहजा सख्त हो गया और उन्होंने घर के मालकिन होने का पूरा रूप दिखाया। मेरे लिए ये शादी एक धोखा है और मैं अभी इसी वक्त इस लड़की को तलाक देकर इस अजाब से आजाद होना चाहता हूँ। मुहिब ने अपना हाथ हवा में बुलंद किया और उसकी आंखों में नफरत के शोले भड़क उठे। खुदा के लिए ऐसा मत करें, मेरे घर वाले मुझे जिंदा जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। तलाक? मैं तुम्हें अभी। मैरव ने पूरी कुव्वत से चीख कर अल्फाज अदा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात पूरी ना हो सकी। रुक जाओ मुहिब, अगर तुमने इस मासूम को तलाक दी तो तुम्हें मेरी कसम है तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। नसरीन बेगम तेजी से मुहिब के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई। उनकी आवाज ने मुहिब के कदमों को वहीं जकड़ लिया। आप इस धोखेबाज के लिए मुझे अपनी कसम दे रही है माँ? अपने सगे बेटे को? मुहिब का हाथ हवा में रुक गया। उसकी आवाज में शदीद सदमा और तकलीफ थी। हाँ, मैं कसम दे रही हूँ। मैंने इस लड़की को अपनी पसंद से इस घर की बहू बनाया। तुम इस घर की इज्जत को इस तरह उछाल नहीं सकते। नसरीन बेगम ने मुहिब की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई फैसलाकुन अंदाज में कहा, ठीक है माँ, मैं आपकी कसम नहीं तोड़ूंगा, लेकिन मैं इस घर में भी नहीं रहूंगा। मुहिब ने अपने हाथ सख्ती से भींचे और गुस्से को काबू करते उसकी नाकाम कोशिश की। कहाँ जा रहे हो तुम? नसरीन बेगम ने तशवीश भरे लहजे में पूछा और आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा। मैं डेरे पर जा रहा हूँ, रात वहीं गुजारूंगा जब तक ये औरत इस घर में है। मेरा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। मुहिब ने तेजी से कदम बढ़ाया और मुड़कर देखे बगैर घर के मरकजी दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज के साथ लाउंज में मुकम्मल खामोशी छा गई। मीरब अभी तक जमीन पर बैठी रो रही थी। उसका वजूद कांप रहा था और उसे अपना मुस्तकबिल इंतहाई तारीक और भयानक नजर आ रहा था। रोना बंद करो मीरब, जो होना था हो गया। अब तुम्हें इस घर में अपनी जगह खुद बनानी होगी। नसरीन बेगम ने झुककर मीरब को बाजू से पकड़ा और उसे सोफे पर बिठाया। लेकिन इन्हें मुझसे नफरत है, मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। मीरब ने अपने आंसू साफ किए, लेकिन उसकी आवाज अभी भी बहराई हुई थी। वक्त सब कुछ ठीक कर देता है। मोहिब गुस्से का तेज है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। उसका गुस्सा ठंडा होने दो। नसीम बेगम ने उसके सर पर हाथ फेरा तो उसे तसल्ली देने की कोशिश की। मीरब, एक झूठ मेरी पूरी जिंदगी खा गया है, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मीरब ने खाली नजरों से उस दरवाजे की तरफ देखा जहां से मुहिब बाहर निकला था। गलती हुई है तुमसे, लेकिन सजा इससे बड़ी मिल गई है। सब्र से काम लो और कल वलीमे की तैयारी करो। नसरीन बेगम ने इंतहाई संजीदगी से कहा और मुलाजमीन को इशारा किया कि वो लाउंज की सफाई करे। वलीमा? जब शौहर ही साथ ही नहीं तो वलीमा कैसा? मीरब के होंठों पर एक तलक मुस्कुराहट उभरी। उसकी आंखों में दर्द का समंदर उमड़ आया। वलीमा होगा और पूरी शान और शौकत से होगा।
बस इस खानदान की इज्जत का सवाल है, तुम जाओ और जाकर आराम करो, ठीक है? नसरीन बेगम के लहजे में एक ऐसा हुक्म था जिसकी नाफरमानी की गुंजाइश ही नहीं थी। मीरा खामोशी से उठी और बोझल कदमों के साथ वापस उसी कमरे में आ गई जहां उसकी जिंदगी का सबसे भयानक ख्वाब शुरू हुआ था। कमरे की हर चीज उसे काटने को दौड़ रही थी। उसने आईना देखा तो उसे अपना अक्स भी एक मुजरिम की तरह लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका एक मजाक किसी की मोहब्बत को इस तरह छीन लेगा और उसे ऐसी दलदल में धकेल देगा जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। दोपहर के वक्त एक मुलाजमा खाने की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। बीबी जी, खाना खा लें, आप सुबह से भूखी हैं। मुलाजमा ने दाई हमदर्दी से मीरब की तरफ देखा और ट्रे मेज पर रख दी। मुझे भूख नहीं है, तुम ये वापस ले जाओ। मीरब ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसकी आवाज में नकाहत थी। बेगम साहिबा ने भिजवाया है, वो नाराज होंगी अगर आपने नहीं खाया तो। मुलाजमा ने डरते डरते इसरार किया क्योंकि वो नसरीन बेगम के गुस्से से वाकिफ थी। उनसे कहना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। मीरब ने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली और मुलाजमा मायूसी से ट्रे वापस लेकर चली गई। दूसरी तरफ मुहिब अपनी डेरे पे मौजूद था। ये शहर से बाहर उनकी जरिए जमीन पर बना हुआ एक खूबसूरत और पुरसुकून मुकाम था, लेकिन आज ये सुकून मुहिब की अंदर की आग को बुझाने में नाकाम था। वो मुसलसल सिगरेट पे सिगरेट पी रहा था और उसकी आंखों में शदीद गर्व था। उसका करीबी दोस्त और मैनेजर शराज उसके पास आकर बैठा। साईं, आजकल की शा आज आज तो आपकी शादी की रात थी, फिर आप और दिन आप अपनी मिट्टी में बैठे हैं। शराज ने हैरत और फिक्रमंदी से मुहिब की तरफ देखा। वो शादी नहीं, एक अजाब है शराज, मैं उस औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मुहिब ने सिगरेट का आखिरी कश लिया और उसे जमीन पर फेंक कर जूसे से मसल दिया। लेकिन कल वलीमा है, बेगम साहिबा ने पूरे गांव और शहर को दावत दे रखी है, अगर आप नहीं गए तो बड़ी बदनामी होगी। शराज ने मुहिब के कंधे पर हाथ रखा और उसे सूरत हाल की नजाकत समझाने की कोशिश की। बदनामी तो उस दिन हो ही गई थी जब मेरी पसंद की लड़की ने इनकार किया था, अब बचा ही क्या है। मुहिब ने एक तलक कहका लगाया। उसकी आंखों में बेबसी साफ जाहिर थी। आपकी माँ की इज्जत दांव पर है, उन्होंने सबको बुलाया, कम से कम उनकी खातिर कल वलीमे में शामिल हो जाए। शराज ने मुहिब की दुखती रग पर हाथ रखा क्योंकि वो जानता था कि मुहिब अपनी माँ की बात कभी नहीं टालता। मैं सिर्फ माँ की कसम की वजह से रुका हुआ हूँ, वरना आज ही उस लड़की को उसकी औकात याद दिला देता। मुहिब ने अपना माथा मसला जहाँ शदीद दर्द की लहरें उठ रही थी। वक्त बड़ा मरहम है साईं, शायद आपके नसीब में यही बेहतर था, कल सुबह आप घर वापस चले। शराज ने धीमी आवाज में मशवरा दिया। मुहिब की तरफ उम्मीद बड़ी नजरों से देखा। घर जाऊंगा लेकिन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, मेरा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है, ना कभी होगा। मुहिब ने फैसले को अंदाज में कहा और वहां से उठकर डेरे के अंदर बने कमरे में चला गया। अगली सुबह मुहिब के घर में वलीमे की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। नसरीन बेगम हर चीज को खुद निगरानी कर रही थी। उन्होंने मुहिब के लिए शहर की सबसे मशहूर ब्यूटिशियन को बुलाया था। मीरा आईने के सामने बैठी थी। ब्यूटिशियन उसके बालों और चेहरे को संवारने में मसरूफ थी, लेकिन मुहिब के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो एक बेजान मूर्त की तरह बैठी थी। तैयार हो जाओ मीरा, आज रात तुम इस घर की इज्जत बनकर सबके सामने जाओगी। नसरीन बेगम कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने ज़ेवरात का एक भारी डिब्बा ब्यूटिशियन के हवाले करते हुए कहा, वो नहीं आएंगे, मुझे सबके सामने अकेला छोड़ देंगे। मीरब ने आईने में नसरीन बेगम का अक्स देखते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। मुहिब आएगा, मेरी कसम और मेरी इज्जत उसे यहाँ आने पर मजबूर कर देगी, तुम बस अपना किरदार ठीक से निभाना। नसरीन बेगम ने मीरब के कंधे पर मजबूती से हाथ रखा, उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की। मीरब ने गहरी सांस ली और अपने आंसू को पीछे धकेल दिया। उसे एहसास हो गया था कि उसे ये जंग अकेले ही लड़नी है। मुहिब की नजरें, नफरत और गुस्सा अपनी जगह था, लेकिन उसे इस दुनिया के सामने खुशगवार बीवी का रूप धारना था। दिल के अंदर चलने वाला तूफान भले ही कितना तबाहकुन क्यों ना हो, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाना अब उसकी मजबूरी बन चुका था। वो जानती थी कि वलीमे की उस रात उसे मजीद तानों और तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, खासतौर पर सिमाब की तरफ से, जो इस तकरीब में शिरकत के लिए जरूर आने वाली थी। मीर अपने खुद को जहनी तौर पर मुकम्मल तैयार कर लिया था और वलीमे का दिन आन पहुंचा। ये एक इंतहाई शानदार रिसेप्शन था। पूरा हाल कीमती रोशनियों और ताजा गुलाबों के फूलों से सजा हुआ था। मीरा बाहरी अरूसी जोड़े में मलबूस स्टेज पर बैठी थी, लेकिन उसका दिल वीरान और उदास था।
मेहमानों का रश था और हर कोई दुल्हन की सादगी और खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। सैमाब मौका पाकर सीधा मीरब के पास और उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। मुझसे झूठ बोलकर तुमने ये सब हासिल किया है। तुमने मेरी जगह छीन ली है मीरब। सैमाब की आंखों में हसद की आग जल रही थी और उसका लहजा इंतहाई तलख था। ये सिर्फ एक मजाक था सैमाब। आज तुम जरा सी अकल इस्तेमाल करती। मीरब ने इंतहाई सुकून से जवाब दिया, लेकिन अंदर से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मजाक? तुमने मेरी जिंदगी और मेरा मुस्तकबिल बर्बाद करके उसे मजाक का नाम दे दिया? सैमाब ने दांत पीसते हुए अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश की। सब बोलते रहे कि तुमने किसी की नहीं सुनी और ना किसी से कुछ पूछा। अब मुझे इल्जाम ना दो सीमा। मैंने ये सब मजाक और जानबूझकर नहीं किया था। मीरब ने अपनी नजरें मोड़ ली थी और अपने आंसू को सख्ती से पीछे धकेल दिया था। सिमाब गुस्से से यखनी पांव पटकती हुई वहां से उठकर चली गई। उसकी नजरें मुहिब पर पड़ी, जो एक तरफ खड़ा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिल रहा था। सिमाब सीधा उसके पास गई और उसे अकेले में बात करने का इशारा किया। मुहिब, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। सिमाब ने अपना दिलकश रूप दिखाते इंतहाई नरम और धीमे लहजे में कहा, क्या बात है? तुम यहाँ क्यों आई हो? मुहिब ने हैरत और कुछ उलझन से उसे देखा। मुझे तुम पसंद आ गए हो। तुम मीरब को तलाक दे दो, मैं तुमसे निकाह के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। सिमाब ने बेबाकी से सारी हदें पार कर दी और अपनी खुदगर्जी का सबूत दे दिया। मुहिब ये बात सुनकर शदीद सदमे में चला गया। तुम होश में तो हो सिमा? तुम अपनी सगी बहन का बसा हुआ घर उजाड़ने की बात कर रही हो? उसने धोखे से मेरा घर उजाड़ा है मुहिब। तुम बस उसे छोड़ दो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगी। सिमा मुस्कुराती हुई वहां से चली गई और मुहिब एक गहरी और परेशान कुन सोच में डूब गया था। ये सीन उसके लिए इंतहाई पैनिक आया था और उसके दिमाग सुन हो चुका था। रिसेप्शन के बाद घर का माहौल इंतहाई कशीदा और टेंस था। कई दिन गुजर गए और मुहिब ने मीरब से सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। वो जब भी कमरे में आता एक खामोशी छा जाती। एक शाम मुहिब थका हारा कमरे में दाखिल हुआ तो उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। मीरब शीशे के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। उसने हल्के नीले रंग का लिबास पहना हुआ था और वो बिला की खूबसूरत लग रही थी। मुहिब उसे देखकर बिल्कुल चुपचाप सा हो गया। उसकी निगाहें मीरब पर जम गई। मलिक जी, मैं कैसी लग रही हूँ? मीरब ने शीशे में मुहिब का अक्स देखकर उसे छेड़ा तो उसके होठों पर दिलकश मुस्कुराहट उभरी। जितना मर्जी तैयार हो जाओ, सच सवर लो, पर तुम कभी सिमाब का मुकाबला नहीं कर सकती। मुहिब ने यकदम नजरें चुराई और अपने अंदर की उलझन को छुपाने के लिए सख्त लहजे में बोला। मीरब का दिल एकदम से टूट गया, लेकिन उसने चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रखी। हिम्मत ना हारी। तो वो याद रखना, बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से निकलकर मैं सिमाब को लाऊंगा, क्योंकि ये उसकी जगह है और वही इस घर की असल मालकिन है। मुहिब ने अपना कोट बेड पर फेंका और इंतहाई ज़ारखुन लहजे में मजीद कहा, फिर भी आप उस जैसी लड़की को डिजर्व करते हो जो सिर्फ सहारी खूबसूरती पर मरती है। मीरब मुहिब की तरफ मुड़ी तो उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख और कड़वी सच्चाई थी। अपनी जुबान बंद रखो मीरब, तुम सिमाब के बारे में कुछ नहीं जानती। मुहिब ने मुठ्ठियां भींच ली और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। याद रखना, जिस दिन आप वाकई टकले हुए वो आपको छोड़ देगी, तो बुढ़ापे में विग लगा लेना। ऑल द बेस्ट। मीरब ने तंजी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और अलमारी से अपना दुपट्टा निकाल कर वहां से चली गई। उसकी इन सच्ची और कड़वी बातों का मुहिब पर बहुत गहरा असर हुआ। वो साकित खड़ा रह गया और उसके अंदर एक अजीब सी जंग शुरू हो गई। इसे शिशु पंच में काफी दिन गुजर गए और घर के छोटे मोटे वाकयात में मुहिब को मीरब की अच्छाइयां नजर आने लगी। एक रात मुहिब को तेज बुखार हुआ तो मीरब सारी रात जाग कर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रही। उसने मुहिब को दवा दी और उसके सराहने बैठकर दुआएं पढ़ती रही। तुम जाकर सो जाओ, मैं अब कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मुहिब ने नकाहत से आंखें खोलकर कहा, लेकिन उसकी आंखों में मीरब के लिए नरमी थी। जब तक आपका बुखार मुकम्मल तौर पर नहीं उतरता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप चुप करके आराम करें। मीरब ने मोहब्बत भरे और अज़्म भरे लहजे में जवाब दिया और दोबारा पट्टी पानी में भिगोई। मुहिब खामोशी से उसकी मासूम और फिक्रमंद चेहरे को देखता रहा। उसे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा था कि मीरब एक इंतहाई मुखलिस और नेक दिल लड़की है। उसका ख्याल रखने का अंदाज मुहिब के दिल को गर करने लगा था। दूसरी तरफ सिमाब उसे फोन पर मुसलसल तंग कर रही थी। वो हर रोज उसे कॉल करती और मीरब को घर से निकालने का मुतालबा करती। मुहिब, तुम
कब तलाक दे रहे हो उसे? मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती, मैं पागल हो रही हूँ। सिमाप की आवाज में जिद और शदीद बेसब्री थी। सिमाप, मेरी तुमसे एक जरूरी बात करनी है मैं, और ये मेरी जिंदगी का अहम फैसला है। मुहिब ने एक गहरी सांस ली और फैसला कुन अंदाज में कहा, आप बोलो मुहिब, मैं सुन रही हूँ। क्या तुमने मीरब को तलाक देने का फैसला कर लिया? सिमाप ने खुशी से पूछा। नहीं, बात कुछ हो रहा है। दरअसल मुझे एक बीमारी लाहक हो गई है, जिसकी वजह से मैं कुछ अरसा मेरे सर के बाल हमेशा के लिए उतर जाएंगे। मैं बिल्कुल गंजा हो जाऊंगा और इसका कोई इलाज भी नहीं। तो क्या तुम्हें इस बीमारी से कोई मसला तो नहीं होगा? मुहिब ने जानबूझकर एक झूठ बोला था ताकि उससे बाप का असल इम्तिहान ले सके। फोन की दूसरी तरफ एकदम से मुकम्मल खामोशी छा गई। मुहिब को सिर्फ सिमाप की तेज सांस लेने की आवाज आ रही थी। हेलो सिमाप, तुम सुन रही हो ना? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मुहिब ने कदरे तंजिया अंदाज में पूछा। मुहिब, मैं किसी गंजे और बदशक्ल इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। तुम मुझे भूल जाओ और मुझे आइंदा कभी फोन मत करना। सिमाप ने अपना असल रूप दिखाया और फोन काट दिया। मुहिब के लोगों पर एक गहरी और तंजिया मुस्कुराहट उभरी। उसे मीरब की कही हुई एक बात सच सच साबित नजर आ रही थी। उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ कि वो कितना अंधा हो चुका था। वो फौरन उठा और मीरब की तलाश में लाउंज की तरफ गया। मीरब लाउंज में सोफे पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। मीरब, मेरे साथ कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मुहिब की आवाज में आज कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मिठास और अपनाहट थी। मीरब हैरत से उठी और खामोशी से उसके पीछे एक कमरे में चली आई। उसका दिल नामालूम खौफ से तेज तेज धड़क रहा था। क्या बात है मलिक जी, सब खैरियत तो है? आप इतने संजीदा क्यों लग रहे हैं? मीरब ने घबराहट से पूछा। मुहिब ने आगे बढ़कर अचानक मीरब के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। मुझे दिल से माफ कर दो मीरब, मैं ज़ाहिरी खूबसूरती के पीछे भाग रहा था और इस हीरे को नहीं पहचान पाया जो मेरे पास मौजूद था। मुहिब की आंखों में सच्ची नदामत और पछतावा था। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। मीरब के दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई और उसने बेयकीनी से मुहिब को देखा। सैमाब ने आज अपना असली रंग दिखा दिया है। तुम बिल्कुल सच कहती हो, उसे सिर्फ मेरे हुस्न और पैसे से प्यार था। मैंने उसे बहाल करने की बीमारी का झूठ बोला, वो मुझे छोड़कर भाग गई। मुहिब ने मुस्कुराते हुए पूरा सच बता दिया। मीरब के हाथों को हल्का सा दबाया। मीरब की आंखों में खुशी और सुकून के आंसू झलक पड़े। उसने गहरी सांस देकर रब का शुक्र अदा किया। मुझे बढ़ापे में विघ्न नहीं लगानी पड़ेगी मीरब। मुझे एक ऐसी सच्ची हमसफर चाहिए जो उस वक्त भी मेरा साथ दे जब मैं बिल्कुल टकला हो जाऊं, और वो हम सिर्फ सिर्फ सफर सिर्फ तुम हो। मुहिब ने उसके हाथ चूम लिए और उसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत और इज्जत थी। मैं हर हाल में आपका साथ दूंगी मलिक जी। मैंने तो उसी दिन आपको अपना लिया था जिस दिन हमारा निकाह हुआ था। मीरब ने रोते हुए अपने चेहरे को झुका लिया। उसके गाल शर्म से सुर्ख हो गया। मुहिब ने इंतहाई नरमी से मीरब का चेहरा ऊपर थामा और उसकी गहरी पुरनम आंखों में झांका। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ मीरब, और अब ये मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। ये कहते हुए मुहिब आगे बढ़ा और उसने अपने लब इंतहाई नरमी से मीरब की पेशानी पर रख दिए। मीरब ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी सारी पिछली तकालीफ को जैसे एक ही पल में धुल गई थी। उसकी जिंदगी का अब एक नया पुरसुकून और मोहब्बत भरा सफर हमेशा के लिए शुरू हो चुका था।